So yeah, the recording has started, and everyone please put your attendance so that we can continue with our class. Everyone please put your attendance. Virendra, I guess you are new to this class, so you have to put your attendance every day after the recording gets started. Okay, Virendra, I hope you're comfortable. So yeah, let me just exit from this account. Did everyone put the attendance? Virendra, I guess you haven't put your attendance. So please type your name and your standard along with your medium in the chat box. वीरेंद्र तुम्हाला काय करायचंय ना की तुमचं नाव, तुमचा वर्ग आणि तुमचं मीडियम म्हणजे इंग्लिश मीडियम मध्ये आहात किंवा मराठी मीडियम किंवा हिंदी मीडियम तर ते तुम्हाला त्या चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचं. आय होप चॅट बॉक्स यूज करता येतो तुम्हाला. ओके ओके फाइन. So now I'm presenting my screen. Everyone please confirm that it is visible to you. I guess yes, it is visible to everyone, right? Yeah, fine. Good. So वीरेंद्रने पण अटेंडन्स इथे लिहिलेली आहे. ठीक आहे. So in the last class, we have seen types of set, right? So singleton set, empty set or null set, and finite set. So these three and infinite set, these four types of set are there, right? So one question is for you people. Let us suppose now I have one set and in which there is element which is zero. Like let us suppose I'm taking a set here. See, B is a set in which one element is there and that is zero. So please tell me whether this is a empty set or not. Whether this is empty set or not. It is not an empty set. या विशाल, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा है बी जिसमें कि एक एलिमेंट है जीरो. तो वेदर इट इज अ नल सेट और नॉट. तो विच टाइप ऑफ अ सेट इज इट? कौन से टाइप का सेट है ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना स्क्रीन पे बी? आई होप यू कैन सी दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेट. It is finite as well as it is finite as well as singleton set. Singleton set, only one element is there, right? तो finite भी है और singleton भी है. Now we have seen finite set, infinite set, null set, empty set, everything. We are familiar with all these things, right? So we have to do some practice over it. So one thing you must remember that N, W, I, Q, R, all these sets are infinite sets. Do you understand this? So what is N, W, I, Q, R? What are these names stand for? N means set of natural numbers. No, N is not number. N is set of natural numbers. W is set of whole numbers, right? I is set of I is a set of integers, right? After that, see if you people are comfortable, so you can turn on your mic and speak the answer. Like once I say, like अभी मैंने कहा कि Q is a set of Q is a set of rational numbers. Is it? Q is a set of rational numbers. R is a set of real numbers, right? There is a difference in rational and real numbers, right? Chalo. So I guess everyone is comfortable now. You can turn on your mic
if the answer is short. Like अगर छोटा सा आंसर देना है, so you can turn on your mic by yourself and give the answer, so that it will be more interactive session, right? So I hope I'm still audible to you, right? Am I audible, students? Please confirm. Okay, fine. Yeah, no issues. So let's continue with the equal sets. As the name suggests, if elements of two sets are same, then the set will be equal set. Now, in case of these two sets, let us see the set A, that is the set A is there, in which X is a letter of word listen. That means जो सेट A है वो किस तरह का सेट है, इसमें जो लिसन वर्ड के लेटर्स है वो सारे हैं, लाइक दिस, एज यू कैन सी, राइट? एंड B is a set in which there are letters from the word silent. So if you observe, although the order of letters is not same, they are shuffled, but still all the letters are same, and that's why these two sets are said to be equal sets, right? So equal sets का definition बहुत ही simple है, इन्हें पहचानना भी आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं रहने वाली है, so that I am not going to take all these examples. Now कौन से दो सेट्स इक्वल नहीं है इसकी हम बात करते हैं. So for that just we will just go through the example third. Now in this example we have set A in which there are elements 1 2 3, and set B there are elements 1 2 3 4. So here 4 is extra which is not present in A, that's why A is not equals to B. करेक्ट? तो इसके जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट है या फिर ऐसा कह सकते हैं हम कि बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है जो कि ए में नहीं है. सो दैट्स व्हाई ए एंड बी, these two are not equal set. So we will solve this complete practice set 1.2. Although I'm solving this here, you have to solve it at home also. You have to write each and every answer on your notebook as your homework. Okay. So practice set 1.2. First question is, decide which of the following are equal sets and which are not. Justify your answer. Now the first set is A is a set of such x such that 3x minus 1 is equals to 2. तो A एक ऐसा सेट है जो कि x का सेट है और x की वैल्यू क्या है कि 3x minus 1 is equals to 2. So try to understand. Now if let us suppose 3x minus 1 is equals to अगर 2 है, so 3x is equals to कितना होगा, 3 होगा, x is equals to क्या होगा, 1 होगा, राइट? तो सी मैंने ये एग्जांपल सॉल्व कर लिया. तो मेरा जो सेट A है, तो मेरा सेट A है उसके एलिमेंट्स क्या है, 1 is the element of A, राइट? रूल फॉर्म में हमें ये सेट दिया था तो उसे हमने क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया. I guess Virendra you are able to listen or you are able to understand as well, right? So हमने इसे लिस्ट फॉर्म में लिख दिया सेट A को. Now we will try to list the set B. Set B is set of such x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. x कैसा है, वो नेचुरल नंबर है बट इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो आप लोग मुझे बताइए कि विच इज दैट नंबर. ऑब्वियसली इट इज 1. 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, राइट? सो अगर हम यहाँ पे सेट बी को लिस्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो इट विल बी 1 अगेन, राइट? नाउ लेट्स गो फॉर द सेट थर्ड. Okay, so C is a set of such x. X is a element of n. What is n here? Capital N. What is n? What is the meaning of n? X is a element of n.
सब लोगों से आंसर चाहिए मुझे, एवरीवन शुड टाइप। n is a set of natural numbers, राइट। यू हैव टू, मतलब आपको ये याद ही होना चाहिए, अगर कैपिटल एन लिखा है ना तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, बट x इज लेस देन 2। x नेचुरल नंबर भी है और 2 से छोटा भी है। तो आप मुझे बताइए कि विच इज दैट नंबर विच इज लेस देन 2 but it is natural? There is only one number, that is 1, right? Because natural numbers start from 1 and they go up to like infinity. But if we have to list natural numbers which are less than 2, so there is only one natural number and that is 1. So I can write here c is also 1। लिस्ट फॉर्म में मैंने a लिख दिया, b लिख दिया, c लिख दिया। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, we can say that a is equals to b is equals to c। yes or no? a is equals to b is equals to c, मतलब तीनों भी सेट कैसे है, इक्वल है, राइट right? चलिए, सो सबको ये एग्जांपल समझ में आया है, ये कंसिडर करके मैं इसे मिटा देता हूं। नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर द सेकेंड एग्जांपल। डिसाइड whether set a and b are equal set, give reason for your answer। तो a is a set of even prime number, so which is even prime number, which are even prime number, कौन से ऐसे प्राइम नंबर है जो कि इवन है? 2 is the only even prime number, all other prime numbers are odd, right? आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि इवन प्राइम नंबर एक ही है और जो कि दो है। सी, इट साउंड्स फनी बट दो एकमेव ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। So I will write a in the list form like this, wait, yeah, a can be written like 2। now b को अगर हमें b को लिस्ट फॉर्म में लिखना है, so we have to solve this expression। so in order to solve this expression, 7x minus 1 is equals to 13, 7x is equals to 14, बिकॉज ये जो 1 है वो राइट साइड में चला जाएगा ना। सो लास्ट x is equals to 14 by 7, that is equals to 2, right? So again b is also set of, b is also same set, from that we can say a is equals to b। yes or no? सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, a is equals to b। now let's go for the third question। I will rub all this। which of the following are empty sets and why? ओके, सो पहला जो क्वेश्चन है उसमें सी, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एंड तीसरा क्वेश्चन, वन बाय वन आप लोग मुझे एक्सप्लेन करोगे कि वो किस तरह से एम्प्टी सेट है। ओके, यू विल स्पीक नाउ, यू विल एक्सप्लेन मी नाउ। फर्स्ट एग्जांपल, जो कोई भी रेडी है उसने पहले नाम लिख देना है चैट बॉक्स में, सो दैट आई कैन कॉल हिम और हर। तो ए इज अ सेट ऑफ सच ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। so whether this is an empty set or not, who is interested to tell the answer, not to write the answer in the chat box? कौन बताना चाहेगा? who wants to turn on the mic? quick, you have to be very quick। मैं जब बोलता हूं ना कि आपको माइक ऑन करना है तो आपने बहुत जल्दी आपका नाम टाइप करना है। आंसर नहीं आता है तो भी नाम टाइप करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज रॉन्ग आंसर्स आर वेलकम, नो नो इश्यू विद दैट। चलिए, कोई बताएगा? नहीं बताना है तो आई हैव टू टेक द नेम। विशाल, कैन यू टर्न ऑन योर माइक? विशाल? यस सर। या गुड। तो अभी मुझे आप बताओ कि जो सेट ए है हमारा, वेदर इट इज एम्प्टी सेट और नॉट? सर एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट है। व्हाई इट इज एम्प्टी? बताओ, जो तुम्हें आता है वो बता सकते हो, डोंट वरी। बिकॉज सी, ए इज एम्प्टी सेट बिकॉज
इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन जीरो। तो स्मॉलर देन जीरो का कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? करता है विशाल? Yeah, you have to keep mic on if unless I ask you to turn off mic. Okay, ठीक है, तो माइक ऑन रखना है। चलो, तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि नेचुरल है और जीरो से छोटा है। दैट्स व्हाई ए इज अ एम्प्टी सेट। नाउ okay, whose mic? Vishal, now you can turn off your mic. Your question is done. Now let's go for the B, which is very interesting. Second question. Who is interested? I again say that wrong answers are completely welcome. No issue with that. Yeah, nobody is interested. B, बताइए, आपको ही बताना है। B is a set of such that x square is equals to 0, whether it is an empty set or not. चलिए, आप नहीं बता रहे हो माइक ऑन करके, चैट बॉक्स में बता दीजिए, empty set or not. कंफ्यूजन है? या आई विल रिपीट द क्वेश्चन। सी, यहां पे जो बी सेट लिखा है ना हमारा, ये वाला सेट, वेदर दिस इज एम्प्टी सेट और नॉट, एम्प्टी सेट है या फिर नहीं है? कैन यू गिव द आंसर और नॉट? B is a set of such that x square is equals to 0, नॉट एम्प्टी सेट। वेरी गुड, वीरेंद्र ने आंसर दे दिया कि नॉट एम्प्टी सेट। नाउ अभी दूसरा कोई बताएगा कि एम्प्टी सेट नहीं है, तो क्यों नहीं है? व्हाई इट इज नॉट एम्प्टी सेट? जल्दी जल्दी बताओ, हमारे पास सिर्फ एक ही आवर रहता है ना। वी डोंट हैव लाइक होल डे, कंप्लीट डे और 3-4 hours। वी ओनली हैव 1 hour। वी हैव टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। तो आप जितना फास्ट रिस्पॉन्सेज दोगे, उतना फास्ट हम सिलेबस कवर कर पाएंगे ना, मतलब उतना अच्छा रहेगा ना आपके लिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बीच बीच में जो मतलब बोलने में जो गैप आता है, तो उससे थोड़ा सा आपको बोर होना भी महसूस हो जाता है। सो बिकॉज जीरो इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो अगर जीरो किसी भी नंबर का, लाइक सी, अभी कादम्बरी ने क्या कहा कि बिकॉज जीरो इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर जीरो नहीं है, तो वो तो फिर एम्प्टी एम्प्टी सेट होना चाहिए ना। लेकिन वीरेंद्र वीरेंद्र ने कहा था कि, वीरेंद्र ने तो कहा है कि इट इज नॉट एम्प्टी सेट, इट हैज सम एलिमेंट्स। तो ये तुम्हारा जो स्टेटमेंट है दोनों का, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना। वीरेंद्र ने क्या कहा कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। एंड कादम्बरी इज सेइंग कि देयर इज नो नंबर जिसका कि स्क्वायर जीरो हो। तो मतलब अकॉर्डिंग टू कादम्बरी इट इज एम्प्टी सेट, बट अकॉर्डिंग टू वीरेंद्र इट इज नॉट एम्प्टी सेट। तो इन दो लोगों ने ओपिनियन तो अपनी दे दी है। नाउ आई वांट टू आस्क अदर्स। So the student who has logged in from name विकास घाटकर, please put in your name। आपका नाम क्या है? विकास घाटकर से, विकास घाटकर के नाम से जो लॉग इन किया है ना आपने, तो वेदांत, प्रार्थना, आयुष, आप लोगों का भी मैं वेट कर रहा हूं, आपके भी रिस्पॉन्सेस का। प्लीज पुट योर रिस्पॉन्सेस क्विकली एवरीवन। बी इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ओके, बट यहाँ पे बी का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल बी। कैपिटल बी इज अ नेम ऑफ सेट एंड वेरिएबल इज एक्स। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है। सी, वेदर इट इज, नो नो नो, डोंट यू डोंट हैव टू राइट लाइक दिस, माइन ऑल्सो सेम। कभी भी नहीं लिखना है एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट, ये लिखना है आपको। बी इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बी तो भाई सेट का नाम है ना, बी इज अ नेम ऑफ सेट। वेरिएबल एक्स है, आप ऐसा कह सकते हो कि एक्स इज नॉट अ नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग कि ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। थोड़ा सा सोचो ना। सी, मैं फिर से एक क्वेश्चन रिपीट करता हूं, उसी तरीके का आपका आंसर आना चाहिए।
कादम्बरी ने कहा कि ये सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, राइट कादम्बरी? विशाल ने जो कहा, विशाल ने कहा कि सर ये एम्प्टी सेट नहीं है। इन दोनों का ओपिनियन मुझे मिल गया। नाउ आयुष, वेदांत, प्रार्थना एंड विकास घाटकर के नाम से जो लॉगिन हुए हैं, इन सब ने मुझे अपना ओपिनियन देना है कि सर एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट। सब ने जल्दी जल्दी। ओके, आयुष का ओपिनियन तो आ गया कि नॉट एम्प्टी सेट है। गुड। प्रार्थना, वेदांत, एम्प्टी और नॉट एम्प्टी? See, this may seem to you like boring, but it is not. ये आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है एग्जाम्पल, सो यू हैव टू थिंक। चलिए मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। बाकी लोग एम्प्टी सेट, ओके। तुम्हारा नाम क्या है? विकास घाटकर के नाम से जिन्होंने लॉगिन किया है ना, स्टूडेंट, आप स्टूडेंट का नाम लिखिए ना चैट बॉक्स में। हु इज स्टूडेंट? पुट योर नेम प्लीज घाटकर, सो दैट आई कैन कॉल यू विथ योर नेम। वैष्णवी, ओके, सॉरी वैष्णवी। सो वैष्णवी नाम है आपका, गुड। सो सी, वैष्णवी ने भी कहा कि इट इज एम्प्टी सेट। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सी, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, सब लोगों को पता है। -1 स्क्वायर इज 1, -2 स्क्वायर इज 4, 0 स्क्वायर इज, बताइए, 0 स्क्वायर इज व्हाट? 0, राइट? 0 स्क्वायर इज 0। तो यहां पे x की जगह पे क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। यस और नो? So now you people please tell me whether it is an empty set or not. Is it an empty set or not? Not empty. Again empty set. वीरेंद्र, विशाल, इसमें एलिमेंट है ना? 0 is again a element, right? So it is not empty set. B is a not empty set, right? चलो ठीक है। So let's move further. Let me just rub this all. Let's go to this example, that is C is a set of such x that 5x minus 2 is equals to 0. X is a set of natural numbers. अभी आप मुझे बताइए कि ये एम्प्टी सेट है या फिर नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, बताना है जल्दी जल्दी। सी, यू डोंट हैव टू टेक टाइम। हेलो, ओके, दैट इज एम्प्टी सेट, ठीक है। सो सी एक्चुअली थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है मेरे साइड में, तो उसकी वजह से जो मेरा स्क्रीन है वो शेयर नहीं हो पाएगा। एंड नाउ आई हैव लॉग्ड इन फ्रॉम मोबाइल, ओके। सो प्लीज लेट मी नो वेदर माय audio is clearly audible to you so that we can continue with the lecture. Yes, it is clearly audible, right? So I have to present my screen so that we can discuss the things. So let me just go to the textbook and then we will continue.
Okay, just a minute to students. Sorry for the inconvenience. I hope my audio is clearly audible to you all. Once I start presenting the screen, then we have to check whether the audio is clear or not. Yeah, it is. Yeah, as of now, it is audible. Uh, but let me just share the screen. So yeah, I'm sharing my screen now. So now is the true test. Like, is it audible still? Yeah, good. Now I'm okay. So it is horizontal now. Let's go to your book in the mobile phone. Just wait, it is loading. Yeah, good. Just a second, students. So, so we were talking about the set C, and you people say that this is a empty set, right? It is an empty set. Why is it empty set? Can anybody elaborate to me? कोई मुझे समझा सकता है, बता सकता है आपका माइक ऑन करके? Is anyone interested? जल्दी, because we don't have time. Anyone is interested? Please take the initiative, no? मैं यहाँ पे आपको कोई पनिशमेंट तो देने नहीं वाला हूँ अगर आपका आंसर गलत होता है तो. Kadambari, you please go ahead. Kadambari, turn on your mic. Okay, sir. Yeah, good. So Because Kadam, because yeah, because if we solve this problem, the solution is 2/5, and this is not a natural number. okay. 2 upon 5 is not a natural number. That's why the value of x is non-natural. मतलब कि वो natural नहीं है, right? But यहाँ पे हमें clearly बोला गया है कि this has to be natural, right? देखिए ना, यहाँ पे हमें क्या बताया है कि this should be natural. So C is the empty set again. Now let's move further. So ये जो question है ना, fourth one, write the reasons which of the following sets are finite or infinite. So पहला जो question है A, that is A is a set of such x such that x is less than 10 and x is a natural number. So x जो है वो 10 से छोटा है और x natural भी है. That means x can contain 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 9, right? So there are finite number of elements in the set A. That's why A is a finite set. Yeah, good. A is a finite set. Now let's move further. B. Tell me, B is a set of a finite set or infinite set? You people tell me. Read about B. B is the set of y such that y is less than minus or infinite. It is infinite. In finite class ये जो
Voice is not coming, is it? Just wait. Wait, students, 1 or 2 minutes. Just 1 or 2 minutes. Voice will be all right. Yeah, it now. It sometimes breaking. Yeah, this won't be the issue because the electricity is back and good. So just 1 minute, give me 1 minute. I'll be logging into the our account and we will start on the computer screen. But before that, we can discuss two sets. Tell me about fifth and sixth one. Fifth and sixth one. Fifth one is finite set of apparatus in laboratory. That is finite, obviously. Right. Sixth one, set of whole numbers. That is infinite. And the last one, set of rational numbers. Set of rational numbers, finite or infinite? Infinite. Very good. Yeah, infinite. Now, our next topic is Venn diagrams. British logician John Venn was the first to use closed figures to represent sets. Such representations are called Venn diagrams. Venn diagrams are very useful in order to understand and illustrate the relationship among sets and to solve the examples based on the sets. तो अगर हमें सेट्स के एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं इन easier way, so we have one option of using Venn diagrams. Okay, so just wait. Am I still audible to you? Please confirm. Yeah, fine. So we are back on the computer screen. Okay, now we were discussing about Venn diagrams. So what exactly is Venn diagrams? Venn diagrams होता क्या है? Any diagram, like कोई भी ऐसी diagram जो कि हमें एक set represent करती है, that is called as Venn diagram. Now in this example, see, set A के जो elements है, they are 1 2 3 4 5 और इन सारे elements को क्या कर दिया है हमने एक डायग्राम में यहाँ पे इनक्लोज कर दिया है. See, this is the diagram, right? So in this diagram we have enclosed the elements of A, and this is nothing but the Venn diagram representation of. Sir, why A is called element? A is not the element, A is a set, isn't it? Capital A is a set and 1 2 3 4 5, these are the elements of set. ओके, यहाँ पे जो A लिखा है ना, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ये A जो है वो इस सेट का नाम है, दिस इज नॉट द एलिमेंट. ओके, नाउ John Venn is the first mathematician who gave the mathematical form of logic and probability. His famous book is Logic of Chance. So if you get chance, then please watch some videos about this mathematician John Venn. But that is not the part of our syllabus, so we will not focus more on that. We will focus more on Venn diagrams rather than John Venn. So अगर हमें एक set B दिया है in the rule form, that is B is set of such x such that x lies between, see, I'm reading this now, which x lies between 0 and -10. Okay, x is greater than or equal to -10 and x is smaller than or equal to 0 and x is an integer. तो इसका अगर हम एक
लिस्ट बनाना चाहे, सो लिस्ट विल बी लाइक बी विल बी 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and -10, right? So this will be list form of B. And जो यहाँ पे दिखाया गया है ना, सॉरी, जो यहाँ पे ये रेक्टेंगल में दिखाया गया है ना, दिस इज वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम सेट, राइट? तो अभी वेन डायग्राम के मदद से सेट्स को रिप्रेजेंट करने का क्या एडवांटेज है, ये आपको समझ में आएगा जब हम देखेंगे सबसेट या फिर जो बाकी सेट्स है, यूनिवर्सल सेट, ऑल दैट। तो इससे क्या होता है ना कि ये जो वेन डायग्राम के यूजेस से हमारे एग्जांपल्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं। वी फाइंड इट इजी टू सॉल्व द एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। नाउ दैट इज नेगेटिव, या सो सी सबसेट क्या होता है? सबसेट, सो सेट A is given, तो element of set are 1 2 3 4 5 6 7 8, right? I'm talking about this, I'm talking about the set A, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now B is a set such that its elements are 2 4 6 8. So if you can see, 2 is present here also, 4 is also present, 6 is also present, and 8 is also present. So all the elements of B are present in A, but all the elements of A are not present in A. See, every element of B is an also element of set A. So that's why B is a subset of A. We have to read like this: B is a subset of A. This can be represented by Venn diagram as shown in figure. तो A अगर हमें नॉर्मली अगर ड्रॉ करना है तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. Sorry, this is not the correct Venn diagram. Let me just use the figures. Yeah. So let us suppose I am drawing a Venn diagram here, and इसको मैं नाम देता हूँ कि this is A. Okay. तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8, राइट? तो ये मेरा सेट ए हो गया, तो मैंने इसे वेन डायग्राम के फॉर्म में लिख दिया. नाउ अगर मुझे सेट बी रिप्रेजेंट करना है, तो सेट बी रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए. तो सिमिलरली this is my set B, isn't it? See, this is my set B as shown here. Okay, so मैंने A के अंदर ही B को रिप्रेजेंट कर दिया. So that's why we say that B is a subset of A. I hope you understand the concept of subset. We have to draw a circle in a set A. Not necessarily. You don't have to draw circle or rectangle or triangle. You can draw any figure. Figure is not the important here. What is important here? Which elements you are adding to set A, which elements you are adding to set B, that is going to matter most. Okay, तो आप कोई भी डायग्राम यूज कर सकते हो. Like you can use triangle also, you can use the square, circle, rectangle, or parabola, whatever, whichever figure comes to your mind, you can use that. Okay, now let's move further. सबसेट हो गया हमारा. उसके बाद में चलिए let's see some more subsets. Now n is a set of natural numbers. तो नेचुरल नंबर्स के सेट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है, बराबर, क्योंकि वी कैन नॉट राइट ऑल द नंबर्स इन एनी डायग्राम. सो द डायग्राम हैज टू बी वेरी बिग, राइट? हमारा स्क्रीन उसके लिए काफी नहीं रहेगा वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, इन ऑर्डर टू पुट ऑल द नेचुरल नंबर्स इनसाइड दैट डायग्राम. एंड सेट ऑफ इंटीजर्स. नाउ n is a subset of I. See here, n is a subset of I. How? नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर्स का सबसेट है. कैसे, हम देखते हैं. मैं यहां से शुरू करता हूं. दिस इज 0, ओके, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी.
मैं यहाँ पे नेगेटिव में अगर जाता हूं तो -1, -2, -3, -4 and so on up to negative infinity. So this will be set of integers, right? This will be I. But if you can see, this is also set of natural numbers, isn't it? Natural numbers भी तो इसमें आ रहे हैं ना. So n is a subset of I. Natural numbers is a subset of integers. बराबर. मतलब नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स इंटीजर नंबर्स के सेट में प्रेजेंट है. करेक्ट? अंडरस्टैंड? समझ में आया सबको? If yes, then put yes in the chat box, everyone. Okay, Kadambari and Vishal and Ayush, these three people have understood. What about Vaishnavi, Prarthana, Vedant? You people are not responding. Virendra, yeah, fine. Every set is a subset of itself. Like A is a subset of itself. मतलब A के जो एलिमेंट्स है वो A में तो रहेंगे ही सारे के सारे. तो A is a subset of itself. A is a subset of A. मतलब हर एक सेट जो है, हमें कोई भी अगर सेट दिया जाए तो वो सेट उसी सेट का सबसेट होता ही है. नाउ सेकंड इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट यानी कि क्या? उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है. तो जो कोई भी अगर सेट रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट रहेंगे, और एक को हम कंसिडर कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट नहीं है. सो द सबसेट तो हुआ ना. मतलब एम्प्टी सेट इज अगेन सबसेट ऑफ every set. Now if A is equals to B, then A is a subset of B and B is a subset of A. अगर A और B दोनों इक्वल है तभी ये पॉसिबल है कि A भी B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है. ठीक है? अगर A and B are not equal, then it is not possible. If A is a subset of B and B is a subset of A, then obviously A is equals to B. It is vice versa. मतलब अगर वो इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के सबसेट है, और अगर वो दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो वो दोनों इक्वल है. एक ही स्टेटमेंट है. Now one more example is given here, that if A is equals to 1, 3, 4, 7, 8, then write all possible subset of A. तो हमें सारे सबसेट पॉसिबल लिखने हैं. तो फर्स्ट सबसेट जो है यहां पे लिखा है, दैट इज P. उसमें हमने इंक्लूड किया 1, 3, राइट. 1, 3 लिखा हमने. सॉरी, आई हैव टू टेक द पेंसिल फ्रॉम हियर. सेकेंड सबसेट हमने लिया T, दैट इज 4, 7, 8. फोर्थ सबसेट हमने लिया 1, 4, 8. फिफ्थ सबसेट हमने लिया 1, 4, 7, 8. कैन यू राइट फ्यू मोर सबसेट? इसके बाद भी आप कोई सबसेट लिख सकते हो. इसका ए का सबसेट लिख सकते हो. सब लोगों ने लिखना है एक एक सबसेट. सब लोगों ने चैट बॉक्स में लिखना है. सी, हमें क्या करना था? सारे पॉसिबल सबसेट लिखने थे ए के. तो यहाँ पे हमने 4 तो लिख दिए. पी एस वी पी टी वी एस, ये 4 सबसेट तो हमने लिख दिए. तो इन चारों के अलावा कोई सबसेट आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में. लिखिए. नाम डिफरेंट होना चाहिए. नाम डिफरेंट होना चाहिए. टीवीएस नहीं, टीवी वो तो लिखा है ना उन्होंने ऑलरेडी. उसके अलावा हमें कोई अगर सबसेट आपको याद आता है तो वो लिखना है. जैसा मैं लिख सकता हूं यहाँ पे. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लाइक पी ले चुके हैं, टी ले चुके, बी तो नहीं लिया है ना, तो मैं यहाँ पे मेरे सेट को नाम में बी दे दूंगा. अभी मेरा सेट बी है, कोई भी बी नहीं यूज करेगा. ओके, तो बी में मैं लिखूंगा ओनली 8. तो अगेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए. ओके, कादम्बरी ने लिखा जी, तो उसमें एलिमेंट्स डाले 8, 4, 1. बट कादम्बरी, इफ यू सी, योर सबसेट इज आइडेंटिकल टू बी, विच शुड नॉट हैपन. तुम्हारे V के और G के सारे एलिमेंट सेम हैं, which is not acceptable. Write a different set.
राइट डिफरेंट सेट। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? वीरेंद्र, आयुष, लिखो, सब लोग लिखो, सबसेट लिखो यहाँ पे चैट बॉक्स में। कितना इजी है, मैंने तो लिख दिया यहाँ पे एक, बी तो लिख दिया, अभी बी के बाद में मैं सी लिख देता हूँ। चलो, सी में मैंने डाल दिए दो एलिमेंट्स। कौन से दो एलिमेंट्स में डालूंगा? 8 और 1 चलेगा, क्योंकि इसमें से कोई भी इसमें 8 और 1 नहीं लिखा, लिखा है मतलब सिर्फ 8 और 1 नहीं लिखा है। चलिए, कादम्बरी ने दूसरा एक सबसेट लिख दिया, दैट इज 138। सो 138 किसी में नहीं लिखा है, वेरी गुड। विशाल ने लिखा है 341, 341 भी किसी ने नहीं लिखा है, वेरी गुड। चलो, दोनों का सबसेट हो गया। नाउ वीरेंद्र, वीरेंद्र हैज रिटन जेड एंड दैट इज इक्वल्स टू 957। 957 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ना 9 है, ना 7, ना 5 है। वीरेंद्र, यू कैन नॉट इंक्लूड 9 और 5, क्योंकि 9 और 5 जो है वो हमारे मेन सेट में ही नहीं है ना। वी कैन यूज एलिमेंट्स दिस ओनली 1 3 4 7 8। इन 5 एलिमेंट्स के अलावा हम कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं लिख सकते। चलिए, वैष्णवी ने लिख दिया है 7 3, 7 3, वेरी गुड, एक्सेप्टेबल, 7 3 भी हुआ। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज, हु इज नेक्स्ट? विशाल, विशाल 718, एक्सेप्टेबल 718, या। तो देखिए, आप लोगों ने कितने सारे सबसेट यहाँ पे लिख दिए हैं। इजंट इट इजी कि सबसेट लिखना कितना आसान है। किसी ने ये सबसेट तो लिखा ही नहीं, मैं लिख देता हूं, चलो फिर से, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक सबसेट है इसका, ये भी दूसरा सबसेट है इसका, राइट। ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इट सेल्फ, 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, है कि नहीं है? 5 इज इक्वल्स टू 5 ही तो लिख सकते हैं ना। सो देर आर नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब आपको जितना आपको लिखना है आप लिख सकते हो। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये एक्टिविटी आप पढ़ लीजिए, कर लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो। Some sets are given below. Discuss and decide which of the following statements are true. A is a subset of B, C and D. तो अच्छे से पढ़ो। A is a subset of B, subset of sets B, C and D. True or false? पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, आप लोगों ने आंसर देना है। A is a subset of B, C and D. बताइए जल्दी जल्दी। पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। विशाल ने जैसे कहा, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। व्हाई इट इज फॉल्स? बिकॉज सी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बी में देखिए 1 2 3 4, इससे आगे के नंबर्स है, लाइक बी इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वी कैन से। बट इसमें अगर आप देखोगे ना, तो 0 भी इंक्लूडेड है, -2 भी, -4 भी। तो ए अगर बी का ही सबसेट नहीं है, तो पहला ही हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है। तो सी का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। सी में भी नेगेटिव नंबर्स है, लेकिन दे आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 6, बट यहां पे 2 के मल्टीपल्स है, बराबर। तो सी में 2 कहां पे है? 2 तो है ही नहीं, ना +2 है ना -2 है। तो सी इज अगेन नॉट द सबसेट ऑफ ए, सॉरी, ए इज नॉट अगेन द सबसेट ऑफ सी। डी की अगर हम बात करें तो सिमिलर, ए में 2 -2 है, +2 है, लेकिन डी में +2 -2 नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ डी अगेन। नाउ द second question, second statement, read that, read the second statement, that is B is a subset of all the sets which are given above. तो B जो है वो सबका सबसेट है, जो भी मतलब दिया है यहाँ पे, उसमें उसमें से सबका सबसेट B है। इज इट ट्रू? फॉल्स, ठीक है, चलिए ये तो फॉल्स है।
सो बी इसमें से किसी ना किसी सेट का सबसेट है, तो वो किस सेट का सबसेट है? देखिए जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। बी इज अ सबसेट ऑफ आई। आई मतलब मेरा नहीं, आई मतलब इस आई का, राइट? सो बी इज अ सबसेट ऑफ integers, integer subset, right? Now the next topic is universal set. तो हम यूनिवर्सल सेट क्या है ये पढ़ेंगे और उसके बाद में आज का लेक्चर हम क्लोज करेंगे। सो थिंक ऑफ अ बिगर सेट which will accommodate all the given sets under consideration, in which in general is known as a universal set, so that the sets under considerations are the subsets of this universal set. Suppose we want to study the students in class 9th who frequently remain absent, then we have to think of all students of the class 9 who are in the school. So all the students in the school or the students of the divisions of class 9 in the school is the universal set. अब universal set exactly होता क्या है? So मान लीजिए कि अभी स्कूल में आपके कैसा होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, अप टू 10th स्टैंडर्ड, ऐसे डिविजन्स होते हैं, बराबर, या फिर क्लासेस होते हैं। सो कंसिडर देम एज अ सेपरेट सेट्स, मतलब क्लास 10th का जो है वो अलग सेट है, क्लास 9 का जो है वो अलग सेट है, क्लास 8 का जो है वो अलग सेट है। सो इन सारे सेट्स को मिला के एक बनता है जो कि स्कूल, जिसे कि हम स्कूल कहते हैं, बराबर। तो मतलब अगर मैं आपको कहूंगा कि एक आपका फ्रेंड है या फिर आप एक बच्चे को जानते हो जो कि अभी 4th स्टैंडर्ड में है, लेकिन वो आप ही के स्कूल में है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या वो आपके क्लास में है, आप कहेंगे नहीं सर वो हमारे क्लास में नहीं है, बिकॉज ही डज नॉट बिलोंग टू यूर सेट, राइट? बट अगर मैं आपको पूछता हूं कि क्या वो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है, so you will say so yes he studies in my school. So that means देखिए वो बच्चा आपके सेट में नहीं है, एक्चुअल में 9th के सेट में नहीं है, बट स्टिल ही इज इन योर स्टैंडर्ड, ही इज इन योर स्कूल। तो योर स्कूल इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स जो है वो लिस्ट किए जाते हैं, जो भी सारे पॉसिबल है ना वो सारे वहां पे लिस्ट किए जाते हैं, और उसमें भी कुछ अलग अलग सेट हो सकते हैं। जब हम कुछ एग्जांपल्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ सी example 2, a cricket team of 15 students is to be selected from a school. Here all students from school who play cricket is a universal set. A team of 15 cricket players is a subset of this universal set. Generally, the universal set is denoted by U, and in the Venn diagram, it is represented by a rectangle. Remember one thing, you have to represent universal set by rectangle always. तो मान लीजिए कि अभी आपके स्कूल में आपकी स्कूल की एक टीम जाने वाली है, क्रिकेट टीम जाने वाली है खेलने के लिए। अभी तो कहीं जा नहीं सकती बाहर कोरोना की वजह से, लेकिन मान लीजिए कि एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें कि सारे जो स्कूल से डिस्ट्रिक्ट के हो या फिर महाराष्ट्र के हो वो अपनी टीम लेके आ रहे हैं। नो, इसमें से 15 लोगों की टीम आपको भेजनी है, लेकिन क्या सिर्फ 15 ही स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे आपके स्कूल में से जो कि इंटरेस्टेड रहेंगे खेलने के लिए? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। देर विल बी या आईपीएल के जैसा, ठीक है। अभी तो आईपीएल ही देख रहे होगे ना आप लोग, क्योंकि आपका स्कूल तो अभी है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या सो 15 स्टूडेंट्स थोड़ी ना रहेंगे, देर विल बी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। लाइक मैं तो कहूंगा कि आपके 9th स्टैंडर्ड में से ही 15 से ज्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहेंगे क्रिकेट खेलने के लिए, 10th स्टैंडर्ड में भी 15 से ज्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे इंटरेस्टेड। तो लेकिन हमें क्या करना है ना कि पूरे स्कूल में से 15 लोगों को ही भेजना है क्रिकेट टीम के लिए। तो जितने आपके स्कूल से बच्चे इंटरेस्टेड है क्रिकेट खेलने में, दे माइट बी 50, दे माइट बी 60, दे माइट बी 100, तो उन सारों का जो रहेगा दैट विल बी यूनिवर्सल सेट। मतलब इतने सारे बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उनमें से जिन 15 को हम सेलेक्ट करेंगे और भेजेंगे, सो दे विल बी द सबसेट ऑफ दैट यूनिवर्सल सेट, राइट? जो ये यूनिवर्सल सेट में से हमने कुछ 15 लोगों को भेजा, तो दैट विल बी सबसेट। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है ये हम अगली बार देखेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। सो बिफोर closing today's class, we will revise whatever we have learned and then we will close the class. So we have seen equal sets, वो तो पता ही है आपको कि क्या होता है। अगर दोनों सेट में के एलिमेंट जो है वो सिमिलर है
then that is equal sets. भले ही उनका ऑर्डर सेम ना हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि उनका ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा. ओके, द ऑर्डर माइट चेंज, बट एलिमेंट्स सेम रहेंगे. नाउ सेकेंड थिंग वी हैव लर्न, दैट इज वेन डायग्राम्स. सो वेन डायग्राम्स में एक चीज जो हमें याद रखनी है, दैट इज यूनिवर्सल सेट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. हाउ टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट? बाय लेटर यू एंड विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल ओनली. यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा क्या नाम देंगे? यू नाम देंगे, कैपिटल यू. यूनिवर्सल सेट, यू फॉर यूनिवर्सल, एंड इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल ओनली. सो दैट इज वन थिंग, दैट इज वेन डायग्राम्स. तो बाकी के जो सेट्स हैं उनके लिए हम कोई भी वेन डायग्राम यूज कर सकते हैं, लाइक सर्कल या फिर कोई भी. नाउ लास्ट सेकंड वन इज सबसेट. सबसेट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सबसेट यानी कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर प्रेजेंट इन अदर सेट, दैट मीन्स द सेट, द फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट. मतलब सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए दूसरे सेट में, तब जाके वो जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है. ना उसके बाद में हमने देखा यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट यानी कि सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, जिसमें कि सारे एलिमेंट्स रहते हैं. या एंड इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड लेटर कैपिटल यू. तो homework for today, your homework for today is practice set 1.2. You have to write all the questions like in a proper form. ठीक है, आपको अच्छे से complete sentence में आंसर लिखना है. And I will post the homework on the group. Then you can post the homework on the classroom when I tell you. But please keep your homework ready. चलिए, so अभी almost 8 बज चुके हैं and it is time for time to close our today's class. Thank you and bye bye everyone. Now you can leave your class. Bye bye. Yeah, bye. Chalo, bye. Leave the class everyone. Yeah, bye. चलो चलो, leave the class जल्दी. वेदांत, वीरेंद्र.